you all to this Sunday morning online service of Victory Church Jalandhar. It's a pleasure to have you all joining us in praising and worshipping the Lord this morning. Psalms 37 verse 4 says, "Delight yourselves in the Lord so He can give you all the desires of your heart." So in the same manner, let's delight ourselves in praising and worshipping the Lord, and by hearing carefully the word of God shared by a dear pastor. So stay tuned, be blessed, and enjoy the service. Our gracious Heavenly Father, Lord, we come to your throne of grace, O God. Lord, we thank you that you are a loving and you are a wonderful God. Lord, we worship you, we exalt your name, O God. Lord, we want to dance and bathe in your anointing and in your presence, O God. Lord, we come at this time with your hands. प्रभु आप हमसे बोलिए और बातचीत करें पिता. प्रभु इस आराधना, हमारी आराधना प्रभु तेरे सामने ग्रहण योग्य होने पाए पिता. प्रभु आप हमारी स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होने पाए परमेश्वर. हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए. प्रभु यहाँ बैठे हुए और यहाँ देखने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं. प्रभु आप हमसे बात करिए पिता. प्रभु यीशु मसीह के नीचे नाम से मांगते हैं. Amen. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Bless your holy name, Jesus. Son of God, river, living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. Yes, I've got river, living water, a fountain never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. Staring up deep, deep wells, staring up deep, deep waters, we're gonna dance in the river, dance in the river. Staring up deep, deep wells, staring up deep, deep waters, we're gonna dance in the river, dance in the river. Deep cries out, the deep cries out, the deep cries out, the deep cries out. We cry out, we cry out to you, Jesus. The deep cries out, the deep cries out, the deep cries out, the deep cries out. We cry out, we cry out to you, Jesus. I've got rivers, living water, a fountain never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. Staring up deep, deep well, staring up deep, deep water, we're gonna dance in the river, dance in the river. Staring up deep, deep well, staring up deep, deep water, we're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out, the deep cries out, the deep cries out, the deep cries out. We cry out, we cry out to you, Jesus. The deep cries out, the deep cries out, the deep cries out, the deep cries out. We cry out, we cry out to you, Jesus. We're falling into deeper water. We're calling out to you. We're falling into deeper water. We're calling
Your will is it, we will never be denied. Alpha River, yes, Alpha River, living water, a fountain never will run dry. It's an open heaven, your will is it, we will never be denied. Stirring up deep, deep well, stirring up deep, deep water, we're gonna dance in the river, dance in the river. Stirring up deep, deep well, stirring up deep, deep water, we're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out, the deep cries out, the deep cries out, the deep cries out, we cry out, we cry out to you, Jesus. Deep cries out, the deep cries out, the deep cries out, the deep cries out, we cry out, we cry out to you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. We need that God, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, hallelujah, Lord. We praise you, Jesus, hallelujah. Walking into deeper water, going after you. We're walking into deeper water, going after you. We're falling into deeper water, falling. Oh, hallelujah, Jesus. We're falling into deeper water, calling out to you. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Bless your holy name, oh Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your holy name, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु जी। तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर, प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु। We bless your holy name, Jesus. Let's worship. Let's go a little more deeper in His presence. Little more deeper in His presence. Close your eyes as worship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम।
तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में स्वर्ग बिना तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। मिलके गाएं प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरे नाम की तारीफ हो प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। Lord, we worship you, Jesus. We bless your holy name. We praise you, Jesus. Hallelujah. तेरे साथ बिता हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की, हर वो लम्हा तेरे साथ बिता, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में
यीशु नाम की जीवन की हर घड़ी संकट से है भरी शांति मुझे दे प्रभु ताकि मैं हर जन घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी शांति मुझे दे प्रभु ताकि मैं हर जन घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं हर वो घड़ी तू मेरे साथ है हर पल सांसें लूं तेरे नाम की सिर्फ यीशु यीशु नाम की सिर्फ यीशु नाम की ये परमेश्वर हमसे कहता है तुझ में मेरी सांसें है रचना तू है मेरा कभी ना अकेला है तू आंखों का तारा तू मेरा प्यारा सीने से रखता तुझे तुझ में मेरी सांसें हैं रचना तू है मेरा कभी ना अकेला है तू आंखों का तारा तू मेरा प्यारा सीने से रखता तुझे हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं हर वो घड़ी तू मेरे साथ है हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की सिर्फ यीशु नाम की सिर्फ यीशु नाम की सिर्फ यीशु नाम की Oh hallelujah आइए लोग प्रार्थना जाएं मैं सूर्य के साथ हम प्रार्थना जाएं मेरे जीविकांत सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी हम एक एक पल पिता परमेश्वर हम आपके साथ बिताना चाहते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की आराधना प्रभु जी हमारे जीवन को बदले पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरा जीवन प्रभु जी मैं आपको समर्पित करने पाऊं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका एक एक वचन मेरे जीवन में देवधारी हो पिता परमेश्वर प्रभु जी और प्रभु जी वो दुखनी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु जितने जन प्रभु जी इस मीटिंग को देखते हैं खुदावन पिता प्रभु जी दुखनी सामर्थ तेरी आत्मिक प्रभु जी गीतों से प्रभु जी तेरे वरदानों से पिता परमेश्वर वो भर जाए प्रभु जी और प्रभु जी उनकी हर एक बीमारी पिता परमेश्वर उनकी हर एक प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर प्रभु जी खत्म हो जाए खुदावन मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं Greetings to you all this wonderful morning in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। I'd like to begin this episode with a small story. और मैं आज के जो वचन है उसको शुरू करना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी बता के। And now there was this cowherd or shepherd and he was
taking his sheep from his village to another village and he was grazing them. और एक गडरिया था, वो अपनी भेड़ों को एक गांव से दूसरे गांव चराने के लिए ले जा रहा था। And there he climbed up a tree and then he was able to watch his sheep and cows. और वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है ताकि वो अपनी बकरियों को, भेड़ों को और गायों को वो देख सके। Suddenly a group of troops, the soldiers come charging into that village. और वो अचानक देखता है कि एक टोली सैनिकों की वो उस गांव में घुसती हुई चली आती है। And they come and they ravage that village, they destroy, they kill every person, and he noticed one thing more. और वो देखता है कि वो केवल आके ऐसे लड़ाई नहीं करते, वो लोगों को मारना शुरू करते हैं और उस गांव के हर एक व्यक्ति को मारते हैं और लूटपाट मचाते He हैं। noticed that after killing everyone, one of the soldiers would apply the blood on the door, and after that any soldier seeing the blood would just pass by. और उसने एक बात और देखी कि जब वो एक घर में घुसते थे, वो लोगों को लूटते थे, मार देते थे और बाहर आके खून उस दरवाजे पे लगा देते थे। तो जो दूसरा डकैत या जो भी सिपाही है वो आता, वो खून को देखता, उसको पता लग जाता ये घर का चोरी हो गया है, वो अगले घर में चला जाता। So this person realized the way to be saved is just apply the blood on the door. और इस लड़के को समझ आ गई कि अगर तुम्हें बचना है तो एक ही तरीका है, अपने दरवाजे पे खून लगाओ। He slowly got down, वो चुपचाप नीचे उतरता ran to है his village, और भाग के अपने गांव में जाता, तो बगल का गांव and था, tells the story to his dad. और अपने पापा को एक घटना बताता है। They have a small sheep there. उनके पास एक छोटी सी भेड़ थी वहां। They kill the sheep. वो भेड़ को मार देते They हैं apply the blood on the door and upon the walls and upon the near the doorpost. और वो उसका खून वो दरवाजे पे, उस रास्ते में हर जगह लगा देते हैं। After a few moments, this army comes there. और कुछ ही समय में वही लूटपाट करने वाले जो सैनिक थे वो अब इस गांव में आ जाते हैं। And there's crying and there's weeping and shouting. और चिल्लाने और रोने और बिलखने की आवाज हर जगह आ रही है। And people are running helter-skelter. और लोग यहाँ वहाँ भाग के बचने की कोशिश कर The रहे हैं। soldiers come and see this house. और लोग ये जो सैनिक है जैसे वो करते आए हैं, वो इस घर के पास जब आते They see हैं, the blood and they pass by. वो खून को देखते हैं और वो आगे They चले think जाते that हैं। someone has already raided this house. और उन्हें लगता है कि हमारे ही में से किसी एक ने इस घर को भी लूट लिया है। By evening, everything has settled down. और शाम तक सब कुछ शांत हो गया। The soldiers go back. जो सैनिक है वो जा चुके हैं। These are the only people left in the whole village alive. पूरे गांव में केवल ये एक परिवार था जो जीवित बचा। Rahab lived in Jericho and assisted the Israelites by hiding the two men who had come out to scout the city. और राहाब जो है वो यरीको की शहर पनाह के दीवारों में रहती थी और वो उन दो इजरायली जनों को पनाह देती है जो यरीको को देखने आते हैं या देखने आते वो शहर कैसा है। Rahab was a debauched member of a doomed race. राहाब एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसे दल की सदस्य थी जिन्हें हमेशा नीचे नजर से देखा जाता था। Yet grace saved her. फिर भी वो अनुग्रह के द्वारा बच गई। She placed her plea for salvation upon the fact that she was justly doomed by God for destruction. और उसका जो विनती और प्रार्थना उद्धार को मांगने के लिए था, वो इस बात पे निर्धारित था कि हाँ परमेश्वर, हम पापी हैं और हम नाश के लिए निर्धारित किए गए हैं। The Expositor's Bible puts it in this way that many people bestir themselves in the matter of personal salvation because of the belief that if they are ordained to be lost, they will be lost. और एक्सपोजिटरी बाइबल जो हमें समझाता है वो इस प्रकार से कहता है कि कई लोग इसी बात पे अपने उद्धार को रख देते हैं कि अरे अगर मेरा नाश होना ही है, मेरी किस्मत में लिखा है नाश होना, तो मेरा नाश होगा जरूर। And if they are ordained to be saved, they will be saved. और वो इस बात को मानते हैं अगर मेरा किस्मत में है कि मैं बचाया जाऊंगा तो मैं जरूर बचाया जाऊंगा। One thing we must understand is that all sinners are justly ordained to be lost. हमें एक बात जो बहुत जरूरी है वो समझना है कि हर पापी व्यक्ति उस नाश के पथ पे निकल पड़ा है। For all have sinned and come short of the glory of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हुए। And if they are, or if we are ordained to be lost,
it is therefore necessary that sinners be saved. और अगर ये बात है कि हम लोग सच में जो पापी है वो नाश के पथ पे निकल चुका है, उसका नाश होना निश्चित है, तो कितना ज्यादा जरूरी है उस पापी का बचाया जाना। That's why Jesus Christ came into the world to save sinners, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि वो पापियों को बचा to save सके, us from our sins. He died on the cross. और इसलिए ताकि वो हमें अपने पापों से बचा सके उसने सलीब पे हमारे लिए He अपनी paid the जान दी। penalty on the cross. उसने सलीब पे उस कीमत को चुकाया। Rahab did not accept the destiny of being doomed. राहब जो है उसने वो नाश किए जाने वालों की उस किस्मत को अपनी किस्मत करके नहीं माना। Rahab prefaced her plea for salvation by declaring that she knew all were doomed for destruction, and because of divine judgment she asked for a token that would assure her on the day of salvation. और राहब ने अपने उद्धार के जो विनती है उसको इस बात पे निर्धारित किया कि हाँ हम पापी हैं और हमारा नाश करा जाना निश्चित है, और सच है कि हमने ये पाप किए हैं, मगर वो फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर से मांगती है कि मुझे एक चिन्ह दो कि मैं और मेरा परिवार हम बचाए जाएंगे। That token was the scarlet thread. और वो जो चिन्ह वो मांगती है वो लाल धागा था। The blood of Jesus Christ is the scarlet thread. हमारे लिए वो यीशु मसीह का लहू है जो उस लाल धागे के समान As है। long as we remain in the house of safety provided by the blood, we are safe. जब तक हम उस घर में सुरक्षित हैं जो उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढका गया है, हम अपने जीवन में सुरक्षित To हैं। live the house of safety, which is the faith in Jesus Christ and Him crucified, guarantees destruction. और जब हम उस घर को, उस सुरक्षा के घर को जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है और हमारा उद्धार है, जब हम उसको छोड़ के जाते हैं तो हमारा नाश निश्चित है। The Lord knew that faith lodged in the heart of this harlot innkeeper, and because of that, God will go to any extent to honor her faith. और परमेश्वर उस स्त्री के विश्वास को जानता था, वो जानता था इसके मन में क्या विश्वास है, और उसको बचाने के लिए परमेश्वर कुछ भी करने को तैयार था। She says in chapter 2 verse 11, "For as soon as we heard these things, our hearts did melt, neither there remained any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath." और यही आयत को हम यहोशू में पढ़ सकते हैं, यहोशू 2 अध्याय, और उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, और यह सुनते कि हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के भी जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। This statement, bear in mind, is said by a harlot, a Canaanite who is rejected normally by Jehovah. और ये जो पंक्तियां हैं, ये जो घोषणा करी है कि वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, ये एक कनानी स्त्री कह रही है, एक पापी स्त्री कह रही है, एक वैश्य स्त्री कह रही है, और जो यहोशू जो इजरायली जन से दूर रहते हैं और यहोवा के दृष्टि में घृणित गिने जाते हैं, ये एक ऐसी स्त्री के द्वारा किया गया घोषणा है। It is like what Peter said when Jesus asked, "Who do you think I am?" He said, "You are Christ, the Son of living God." और ये जो बात है ये उसी प्रकार से है, एक प्रकाशन है जो उसको मिला, जिस प्रकार से पतरस को एक प्रकाशन मिला। उसने कहा, जब उसे पूछा गया कि मैं कौन हूँ, और वो प्रभु यीशु मसीह को उत्तर देता है, तू ही मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे लिए संसार में आया, तू ही मसीहा है। She is like Abraham, pleading and interceding not only for herself, but for a father, for a mother, for a brother, for a sister, and all that belong to them. We find this written out in one of the verses there. और ये जो राहब है यहाँ पे वो अब्राहम की नाई वो विनती करती है, जैसे अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए विनती किया, यहाँ वो अपने पिता के घराने के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, और उनका जो कुछ है उनके लिए विनती करके कि केवल मैं नहीं मगर हम सब बचाए जाएं। In the book of New Testament, there's something very similar where it's written in Acts 16 verse 31, "Believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household." और
इसी आयत को हम लोग प्रेरितों के काम उसके 16 के 31 में पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Coming back to verse 21, and she said, according to your words, so be it. And she sent them away, and they departed, and she bound the scarlet line to the window. और यहोशू 2 के 31 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वो चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। Rahab lost not a moment in making her calling and election sure. राहाब ने एक पल नहीं गवाया कि जो उसको वो वाचा मिला है, जो उसको बुलाहट, अब नई बुलाहट मिली है, उसको सुनिश्चित करने में उसने एक पल नहीं गवाया। As soon as those 2 spies got down, she tied the scarlet thread. जैसे ही वो 2 जासूस वहां से विदा होते, वो तुरंत उस लाल डोरी को अपनी खिड़की पे बांध लेती है। Prior to the scarlet thread being tied, she was ordained for destruction. और ये लाल धागे के बांधे जाने से पहले ये निश्चित था कि उस शहर के बाकी लोगों के साथ इसका भी नाश होगा। But from the moment she trusted the true token that was ordained for salvation. मगर जब उसने उस पल वो विश्वास किया और उसको वो चिन्ह दिया गया उद्धार के लिए कि नहीं, अब तुम बचाए जाओगे। Have you accepted Jesus Christ as your personal savior? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? Catch on, cling on, as this lady did. Make sure of your salvation. हमें उसी प्रकार से राहाब के समान प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के रखना है, अपने उद्धार को सुनिश्चित करना Are है। you washed in the blood of the Lamb? क्या आप मेमने के लहू में धोए गए हैं? Many people think that being delivered from Egypt is a type of salvation. कई बार कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मिस्र से छुड़ाया जाना एक प्रकार से उद्धार के काम के समान है। I'm going on, I'm continuing with River Jordan, crossing River Jordan, Israelites crossing River Jordan. और मैं भी उस घटना पे जा रहा हूँ जहाँ यरीको पहुँचने से पहले जो इज़राइली जन है वो यरदन नदी को पार करते। Now we come to the aspect of crossing River Jordan. अब हम यरदन को पार करने के विषय में देखते हैं। Many people think that being delivered from Egypt is a type of salvation. और कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि जिस प्रकार से यरदन को उन्होंने पार किया वो उद्धार के काम को दर्शाता है। It's actually a deliverance from the domination of sin nature. और असल में अगर हम देखें तो वो पाप के स्वभाव से छुटकारे को दर्शाता It is है। effective now when we believe and have faith in the slain lamb. और हमारे जीवन में वो तब प्रभावशाली है जब हम उस बलिदान पे विश्वास करते जो मेमना हमारे लिए मारा गया, जो प्रभु यीशु मसीह है। So when we are saved like the Israelites were saved. और जब हम बचाए जाते हैं, हम इज़राइलियों के समान बचाए जाते हैं। Because the Israelites believed in the Abrahamic covenant. क्योंकि उन्होंने अब्राहम के साथ की हुई उस वाचा पे उन्होंने विश्वास किया। I and you believe in the new covenant. आप और मैं उस नई वाचा पे विश्वास The करते हैं। covenant that God has made with you and me through His blood, Him dying on the cross. I and you believe in the new covenant. आप और मैं उस नई वाचा पे विश्वास करते हैं। So when were the Israelites saved? इज़राइली कब बचाए गए? They were saved by trusting in the Abrahamic covenant. वो तब बचाए गए जब उन्होंने अब्राहम के उस वाचा पे विश्वास I किया। and you believe in the new covenant. आप और मैं उस नई वाचा पे विश्वास करते हैं। What is this new covenant? और ये नई वाचा क्या है? Hebrews, the book of Hebrews chapter 8 from 6 to 13, you find there the new covenant mentioned. और इब्रानी की पुस्तक हम लोग उस 8वें अध्याय में 6 से लेकर 13 तक अगर हम पढ़े, हम उस नई वाचा को वहां पा सकते हैं। It said that I will put my laws in their mind and write them on their hearts. I will be their God and they shall be my people. और परमेश्वर वहां कहता है कि मैं अपनी वाचा को, अपने शब्दों को उनके हृदय की पट्टियों पे लिख दूंगा, मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वो मेरे लोग होंगे। I will remember the sins no more. अब मैं उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। Why?
क्यों? Because Jesus paid the price. क्योंकि उनके पापों की सजा की जो सजा है उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने It is चुका दी। all taken away by the blood of the Lamb. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सारे पाप क्षमा किए गए हैं। Crossing Jordan is a type of baptism. यरदन को पार करना बपतिस्मा के समान है, Baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के समान है। It is impossible to claim the promises of God without the leading and guidance and the power of the Holy Spirit. हम परमेश्वर के दिए हुए वाचा को हम लोग हासिल करें वो असंभव है बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बिना पवित्र आत्मा के चलाए चले बिना। We know what's written in Acts, book of Acts chapter 1 verse 8. हम जानते हैं प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय की 8वीं आयत में क्या You लिखा shall है receive power after the Holy Ghost has come upon कि you. तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पे That you उतरेगा, shall be witnesses unto me. तुम मेरी गवाह ठहरोगे। Crossing river Jordan is like a type of death. और यरदन को पार करना एक मृत्यु को भी दर्शाता Death है, of the flesh. शारीरिक अभिलाषाओं की मृत्यु। And entering Canaan is possessing the powers of God. और वो वाचा किए हुए स्थान में प्रवेश करना परमेश्वर की सामर्थ को हासिल करने के समान है। So when the children of Israel crossed river Jordan, और जब ये इजरायली जनों ने यरदन को पार they किया, did two specific things. उन्होंने दो खास काम किए। They built two memorials. उन्होंने दो स्मारक की स्थापना की। Verse 8 and 9. और 8वीं और 9वीं आयत में इस प्रकार से In लिखा verse है, 9 it says they set 12 stones in the midst of river Jordan. और 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने 12 पत्थर को उस यरदन नदी के बीचों बीच खड़ा किया। And in verse 8 it said they carried the 12 stones to Gilgal. That's verse 20. और 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि वो 12 पत्थरों को लेकर के वो गिलगाल तक भी गए। Notice something about these stones. आप इन पत्थरों के बारे में कुछ देखिए। They were stones taken from the water. ये वो पत्थर है जो उस नदी से उठाए गए थे। They were carried. वो उन्हें उठा के चले They गए, were laid down. उन्हें बिछा दिए And they गए were set up. और उसके बाद उन्हें स्मारक के समान रखे गए। I and you are like these stones that are submerged under the water in the wrath of God. और आप और मैं उस पत्थरों के समान है जो परमेश्वर के क्रोध में हम दबे हुए थे। But the stone was then picked up. मगर फिर उस पत्थर को उठा लिया They गया, were carried on the shoulders. उन्हें कंधों में उठा के ले जाया गया। Jesus Christ carried our sin, our burden. He now carries us and to make sure that we are happy. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अब वो हमें लेके चलता है कि हम खुश और आनंदित हों उसमें। He laid those stones. उन पत्थरों को वहां बिछाया गया। I remember Psalms, I think it's in Psalms 4 verse 8 where it says, I both lay down and slept, and for you, O Lord, makes me to dwell in safety. और भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि मैं लेट गया और मैं सो गया क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू मुझे शांति से आराम करने को मेरे को वो मौका देता है। We find safety. हम सुरक्षा को पाते We are हैं, set up. हम स्थापित किए Set जाते up for हैं, resurrection. स्थापित किए जाते हैं पुनरुत्थान दिवस के लिए। They carried the stone to Gilgal. वो पत्थरों को उठा करके गिलगाल ले जाया You know, गया। Jesus Christ says at one place, the stones will cry out. और एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहता है पत्थर चिल्ला The stones उठेंगे। of Gilgal are crying out. गिलगाल के वो पत्थर चिल्ला रहे हैं। Oh, we have a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर I है। dare not trust the sweetest frames of life, मैं जिंदगी की उन मिठासों पे विश्वास but नहीं I want to रखूंगा, lean on Him. मगर मैं अपना भरोसा परमेश्वर पे रखूंगा। There's one thing more. एक और बात है, The first memorial stone, 12 stones that was they placed it at the river Jordan, signifies the death and burial of Israel's 40 years. और जो पहला पत्थर उन्होंने स्मारक में वहां रखा वो इजराइलियों के उस मरने को और उस 40 साल की उस पीड़ा को दर्शाता है। It shows their unbelief and sinning in the wilderness. वो उनके अविश्वास को और अविश्वास के पाप को दर्शाता है जो उन्होंने उस मरुभूमि में 40 But साल now किया। being laid at the in that river, it shows, it depicts all the sins of Israel is buried, forgotten, and just covered.
और अब जब वो वहाँ बिछा दिए गए, वो इस बात को दर्शाता है कि अब उनके पाप भुला दिए गए, क्षमा कर दिए गए, अब वो खत्म हो गए। Every reproach, the reproach that the Egyptians said that your Lord, your God cannot give you that land, and that's why you're wandering in the desert. और हर वो बात जो उनके खिलाफ गई, जैसे मिस्रियों ने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर तो तुम्हें संभाल नहीं पाया, इसलिए तुम अभी भी यहाँ भटक रहे हो। That's why they came to the land of Gilgal. अभी इसलिए वो गिलगाल के स्थान पे Gilgal आते हैं। means गिलगाल का अर्थ है rolled away. कि अब लुढ़का दिया गया है। Camping in Gilgal means the sins, the doubts, and the faithlessness, unbelief has all been rolled away. और गिलगाल में वो जब अपनी छावनी को डालते हैं तो उसका अर्थ यह है कि जितने हमारे पाप थे, जितना अविश्वास था, जितनी हमारे ऊपर लोगों के कठोर शब्द थे, वो सब अब हट गए हैं, सब लुढ़का दिए गए हैं। Placing those 12 stones depicts a new beginning for the children of Israel. और वो 12 पत्थर को वहां स्थापित करके एक स्मारक बनाया जाना इजराइलियों के लिए एक नई शुरुआत को दर्शाता Now है। they are going to conquer Jericho. अब वो यरीको से लड़ने जा रहे हैं, But there's 4 things to be done. मगर 4 काम उन्हें करना जरूरी है। And what were they? और वो क्या थे? I'll just enumerate them and close up with that. मैं बस आपको वो 4 बातें बता के खत्म The करूं। first is circumcision. पहली बात है उन्हें खतना करना जरूरी है। Israel was about to smite the 7 nations with the sword of the Lord. इजरायली जन जो है वो परमेश्वर की तलवार से 7 देशों का घात करने वाले थे। But before they use the sword on others, they must feel the sharpness themselves and die beneath its stroke. और इससे पहले कि वो उस तलवार को किसी और के ऊपर इस्तेमाल करे, ये जरूरी था कि वो उसके दर्द को महसूस करे और वो उनके ऊपर पहले प्रभावशाली हो। Separation was made, blood was shed. और वो खतना के उस प्रक्रिया के द्वारा वो अलग किए जाते हैं। It is very bitter to learn not only that all our badness has to be slain, but even the goodness on which we are proud and haughty, all our righteousness and our filth, those are as filthy rags, they have to be destroyed. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि केवल हमारी बुराइयां नहीं है जिसको हम लोग छोड़ते हैं, मगर इवन वो बातें जो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी है, जिन पे हम घमंड करते हैं, हमें गुरूर होता है, हमारे स्व धार्मिकता होती है हमारी, उन चीज़ों को भी खत्म करके अलग करना ज़रूरी है। Circumcision symbolizes death to self. खतना जो है अपने आप के लिए मारे जाने को दर्शाता The है। second thing they did was और दूसरी बात जो उन्होंने किया, they kept the Passover. उन्होंने उस पासोवर को, उस फसह के पर्व को रखा। This is the first Passover in the promised land. और ये उस नई वाचा किए हुए स्थान पे रखे जाने वाला पहला फसह का पर्व है। This is the Passover symbolizes the testimony of the blood of the lamb. और जो फसह है वो उस बात की गवाह है कि उस मेमने के जो बलि चढ़ाए जाने के द्वारा उन्होंने जो विजय पाया उसको दर्शाता है। Joshua is the leader. यहाँ यहोशू अगुआ है। Now the name Joshua in Hebrews means the same thing as Jesus, which means savior. और यहोशू का अर्थ भी उसी मूल शब्द जैसा है जो यीशु मसीह के समान है, जिसका अर्थ है बचाने वाला। Joshua, Yehoshua, God is deliverance. और ये यहोशुआ जिसका अर्थ है कि प्रभु हमारा छुड़ाने वाला है। Keeping the Passover is appropriate for its Jesus who died on the cross for your and my sins. और फसह का रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए वो मारा गया। It was important that they be righteous. और उनके लिए वो जरूरी था क्योंकि उनको धर्मी ठहराया जाना जरूरी था। The first was that they were circumcised. पहला उनका खतना किया गया। Second was they kept the Passover. दूसरा उन्होंने उस फसह के पर्व को मनाया। And the third thing is that manna ceases to fall. और तीसरी बात जो होता है मन्ना गिरना बंद हो जाता है। Manna was angels' food. मन्ना जो है वो स्वर्गदूतों का भोजन But था। now they should realize that the corn of the land, which symbolizes the word of God, is needed for our spiritual growth. और अब उन्हें ये बात समझना जरूरी है कि जो भूमि की जो मक्का है, जो उग रहा है, जो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, वो हमारी आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. मनुष्य
केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर प्रत्येक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। The man with drawn sword, जो मनुष्य जो उस तलवार को लेके खड़ा this था, is what we find the fourth thing. और चौथी बात को मैं बता रहा हूँ, The man with the drawn sword. वह एक व्यक्ति है जो तलवार लेके खड़ा है, It is the pre-incarnate Christ that comes in front of Joshua. और वो यीशु मसीह से पहले का वो रूप है जो यहोशू के सामने आता है। This is just before they are conquering Jericho. और ये यरीको को जय पाने जाने से पहले की एक घटना है। And Joshua does not recognize. और यहोशू उसको पहचानता नहीं, And he asks, who are you? और वो कहता है तुम कौन हो? And he says, I am the captain of the host, the Lord, the captain. And he says, he is the captain of the host of the Lord. Joshua falls at his face. और वो कहता है कि मैं जो हूँ, मैं परमेश्वर के यहोवा के सेना का प्रधान हूँ। Joshua falls on his face. यहोशू अपने मुंह के बल गिरता A है total surrender. और पूरी तरीके से अपने आप को सौंप But देता then comes a command, remove your shoes. है। और फिर वो कहता है अपने जूते को उतार। Joshua was giving up all the ownership and the leadership. He was giving to Christ total control. और वहां पे यहोशू पूरी तरीके से अपना अधिकार, अपना पद, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरीके से दे रहा था। See, when you surrender your life to the Lord, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में God is सौंपते able हैं, to take care of you. परमेश्वर आपको संभाल पाता है। 4 things these people did as they were crossing before they were to conquer Jericho. और यरीको को लड़ के जीतने से पहले इन इजराइलियों को 4 चीजें करनी जरूरी थी। The death of self, उनका स्वयं का मारा जाना, circumcision, उनका वो खतना किया जाना, the Passover, which depicts the testimony of the blood of the Lamb, और फसह मनाना जो उस गवाही को दर्शाता है जो उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा पाया है। the third is that manna stopped, which means feeding on the corn, feeding on the word of God. और वहाँ पे तीसरी बात हम देखते हैं कि मन्ना जो स्वर्गीय भोजन है वो बंद हो जाता है, मगर अब उन्हें विश्वास करना है उस परमेश्वर के वचन पे जो उस भूमि के फसल के समान है। And the fourth is putting off your shoes, which depicts that you are subjected to Christ. और चौथी बात है जहाँ वो यहोशू से कहता है कि अपने जूतों को उतार, मतलब आप पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते See, हैं। when you surrender yourself completely in this manner, जब आप अपने आप को जैसे इजराइलियों ने सौंपा, आप अपने आप को पूरी तरीके से you are परमेश्वर के हाथों able में to सौंपते हैं। overcome the problems in your life. आप अपने जीवन की समस्याओं पे विजय पा God पाएंगे। God will be with you and during these times. परमेश्वर आपके साथ इस समय पे होगा। See, He does not leave you or forsake you. वो आपको छोड़ता नहीं है, न त्यागता है। I had experience last 2 days, even today. और ये पिछले 2-3 दिनों में मेरा कुछ अनुभव रहा। I had an important document. It's called the ECHS card. और मेरा एक बहुत जरूरी कार्ड था जो ECHS कार्ड हम कहते हैं, That was lost. वो गुम हो गया। And without that, we can't show ourselves to the doctor or get any help, और medical उसके help. बिना हम अपना जो हमारे मेडिकल जो जरूरत है डॉक्टर से मिलना वो सब संभव नहीं है। When we are subjected to Christ, जब हम अपने आप को मसीह के हाथों में पूरी तरीके से सौंप देते हैं, God takes control of us. प्रभु हमारे जीवन को संभालने लगता है। Like Rahab prayed for her father, mother, brother, sister, and all that they had, and asking for their protection, God protects us. और जैसे राहाब ने अपने पिता, माता, भाई, बहन और उनकी जो कुछ उनका था उन सब के लिए उसने परमेश्वर की सुरक्षा को मांगा, वैसे ही परमेश्वर हम और हमारे सारे घराने को सुरक्षित You do रखता not है। have to fear for your son, your daughter, for their marriages, for their jobs. You do not have to fear. आपको अपने परिवार के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे बेटी के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनकी शादी के लिए आपको घबराने की But जरूरत when नहीं you है। surrender yourself to the Lord, मगर जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ like में Joshua सौंपते took हैं, off his shoes and fell on his face and worshiped God, when you come in that personal contact with God, God takes care of your need. और जैसे यहोशू उस समय अपने जूतों को उतार के पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को दंडवत करके सब कुछ सौंप देता है, जब आप अपने आप को एक निजी रिश्ते में परमेश्वर के साथ लाते हैं, परमेश्वर आपको संभालता है। Can you come into this relation?
क्या आप परमेश्वर के साथ एक Are निजी you रिश्ते को बना enjoying this सकते हैं? relationship? क्या आप, अगर आपने ऐसा रिश्ता बनाया, क्या आप उसका आनंद ले रहे हैं? It's really good to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में होना सच में बहुत आशीष की बात I'm going to है। pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा And रहा I'm हूँ going to ask God to be very strong in your life. और मैं मांगने वाला हूँ कि परमेश्वर बहुत गंभीरता से कि आपके जीवन में हो, He'll be strong in your life. वो आपके जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, He'll take care of you. वो आपको You do संभालेगा। not have to fear. आपको डरने की जरूरत You नहीं do not है, have to fear of the disease. आपको बीमारियों से डरने की You जरूरत do not नहीं have to है, fear any situation. किसी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, Because He has made a covenant with you that He will be your God and He will neither leave you nor forsake you. क्योंकि उसने आपके साथ इस वाचा को किया है कि वो आपका परमेश्वर है, न वो आपको त्यागेगा न वो आपको छोड़ेगा। Heavenly Father, we come before your throne of grace. स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने I आते want हैं। you all to bow your head down. मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपने सरों को Surrender झुकाएं, to the Lord. अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप Heavenly Father, we come into your presence. परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपके उपस्थिति में आते Lord, I हैं। want you to touch every person who is listening to this message this day. प्रभु, मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है, आप उनके जीवन में काम करें। Lord, change things in their life which is not appropriate. प्रभु, उनके जीवन में जो बातें सही नहीं, आप उनको बदल दे। If they are fearful, Lord, give boldness in their life, O Lord. प्रभु, अगर वो अपने जीवन में डरे हुए तो आप उन्हें ढाढ़स दे। If they are depressed, O Lord, remove the depression of us. प्रभु, अगर वो निराश है तो आप उन्हें उस निराशा को निकाल दे। And if they are want of any money, Lord, you provide it for them, O प्रभु, Father. अगर वो पैसों की आर्थिक जरूरत में, प्रभु आप उनकी जरूरत को पूरी करें। Lord, you are the God who provides. प्रभु, आप हमारी जरूरत को You are पूरी करने वाले Jehovah परमेश्वर Jireh. हैं। आप यहोवा यीरे हैं। Take care of the people, O Lord. प्रभु, आप अपने लोगों को I संभालें। commit the young people into your hands, O Lord. प्रभु, मैं जवानों को भी आपके हाथों में सौंपता People हूँ। who are facing difficult situation because of some reproach. प्रभु, उन लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो किसी कठिन परिस्थिति में है या कोई उनको शर्मिंदा कर रहा है। Lord, I rebuke every powers of darkness working against them. उनके जीवन में काम करने वाले हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We are victorious through you, O Lord. प्रभु, हम आपके द्वारा जयवंत हैं। Every walls of Jericho will fall down यरीको की हर दीवार नीचे गिर जाएगी because you are our God. क्योंकि आप हमारे You परमेश्वर will हैं। give us victory. आप हमें जय In देंगे। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। You're welcome to write to us. Get in touch with us. We'll pray for you. अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है, आप ज़रूर हमें इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। Let's say the benediction together. आइए हम आशीषित वचन एक साथ बोले। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and communion of the Holy Spirit abide with us now and forevermore. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हमेशा हमेशा तक हम में से हर एक के साथ बनी रहे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको बनाए रखे और May the सुरक्षित Lord be रखे। favorable to you. परमेश्वर आपके प्रति अनुग्रहकारी हो And may you enjoy the sweet presence of God every moment during the coming week. और आने वाले हफ्ते में आप प्रत्येक पल प्रभु की उस मधुर उपस्थिति को महसूस करें। Amen.